عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا اور جو حالات انسانوں پر آئیں گے اور انسانوں سے زیادہ جو حالات مسلمانوں پر آئیں گے وہ سب قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیے. مشرکین مکہ کے لوگ، مدینہ کے یہودی جب پرانے واقعات سنتے، سابقہ امتوں کی زندگی سنتے، سابقہ رسولوں نبیوں کی کہانیاں قرآن مجید میں سنتے تو کہتے تھے قالوا ھذا اساطیر الاولین، اس میں تو پرانے دور کی کہانیاں بھری ہوئی ہیں، یہ پرانے دور کی باتیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اساطیر الاولین. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بیان کرتے تھے تاکہ مسلمانوں تمہیں پتہ لگ جائے کہ زندگی کس طرح گزرتی ہے، کس طرح کس نبی نے زندگی گزاری. اس نبی کی زندگی دیکھ کے تم اپنی زندگی کا تعین کر لو، تمہیں پتہ لگ جائے کہ اسلام پہ چلنے والے، ایمان والے، ان کی زندگی کی صبح کیسی ہوتی ہے، شام کیسی ہوتی ہے، ان کو ماہ و سال کیسے ہوتے ہیں، ان کو آسانیاں کم اور مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے. وجنت الکافر، یہاں پہ موجیں، خوشیاں، یہاں کے سکون اور راحتیں وہ کافروں کے لیے. ہماری جنت آخرت میں ہے، کافر کی جنت دنیا میں ہے. ہم آج قید خانے میں ہیں، آج پابندیوں میں ہیں، مگر کل جنتوں میں ہیں انشاءاللہ تعالی، کل جنتوں میں ہیں. یہ باتیں ساری ہمیں سمجھا دی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بیان کی. دعوت کے کام کرنے والوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بار بار سنایا گیا کہ 950 سال میرے نبی نوح نے کوئی دن آرام کا نہیں دیکھا. دعوت کی ساری زندگی پتھر کھائے، تکلیفیں برداشت کی، تانے سہے، اور کسی نے بات نہ مانی. بیوی بھی نافرمان، بیٹا بھی نافرمان، قوم بھی نافرمان. اور دعوت کبھی کبھی دیتے تھے. ہم تو کبھی کبھی دعوت دیتے نا، رمضان آ گیا تو عبادت زیادہ کر لی، رمضان آیا تو چھٹی کر لی، جمعے کی نماز میں زیادہ اہتمام سے آ گئے، عصر کی نماز میں سستی کر لی. ایسے نہیں تھے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی، میں نے رات کو بھی ان کو جا کے پکارا. ایک ایک بندے کے پیچھے گئے اور 950 سال میں 80-82 لوگ مسلمان ہوئے. اس سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم اس وقت بھی مذاق اڑا رہی تھی. یہ خشکی پہ کشتی چلائیں گے، یہ صحراؤں پہاڑوں پہ کشتی چلائیں گے، کسی نے نہیں مانا. پھر ان کے لیے بددعا کی، اے اللہ اس کائنات میں کسی کافر کے گھر کو چھوڑ ہی نہ، سب کو تباہ کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا. کتنا پانی تھا؟
जो पहाड़ों के ऊपर से गुजर गया। बेटे ने कहा मैं तो इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहा आ जाओ, इस कश्ती में आ जाओ, ये ईमान वालों की है। कहता नहीं नहीं, मैंने नहीं आपकी बात माननी, मैं तो पहाड़ पर जाऊंगा। फरमाया आज अल्लाह के अलावा किसी की पनाह नहीं। पहाड़ भी डूब गए तो नूर से पानी निकला, आसमान से पानी बरसा, हर तरफ पानी पानी हो गया। इस किस्से को बार बार बयान किया कि दावत के लोगों, ये मत समझना कि तुम आसानी से जिंदगी गुजारोगे। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, दोनों बातें एक ही जगह बयान की। जिन्होंने हक की बातें बतानी है, जिन्होंने हक की वसीयत करनी है, उन्हें साथ सब्र की वसीयत भी करनी होगी, क्योंकि हक के साथ सब्र चलता है। यह नहीं हो सकता कि आप हक की बात करें और आपको रद्द अमल ना आए, और फिर रद्द अमल में आपने रद्द अमल का शिकार नहीं होना। दुनिया आपके हक कहने की वजह से, आपके हक अमल की वजह से आपकी दुश्मन बनेगी, और लोगों सब्र कर लेना। फिर अभी हमारे खुतबा खतीब हजरात आने वाले जुमों में ईद के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। वो सारा किस्सा बड़ी फरावानी का, बड़ी आसानी का, आसान जिंदगी का हो गया, आजमाइशों का। कौम के साथ, खानदान के साथ, बाप के साथ हिजरतों का सफर, कोई एक दिन आराम का नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, मगर दावत उन्हीं की परवान चढ़ी जो आजमाइश की भट्टियों से गुजर गए। आज नूह अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा है, उनको कोई नहीं जानता जो पत्थर मारते। और सुन लो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरे कारकुनान, मेरी बहनों, जो आजमाइश की भट्टी में से गुजर जाएंगे वो कुंदन बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो कुंदन बन जाएंगे। मुश्किल जरूर है, मगर इन मुश्किलों के बाद आसानी है, ये अल्लाह का वादा है। फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। एक तंगी है, दो आसानियां। मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग अपने मुताबिक तर्जुमा करते थे कि तंगी के बाद आसानी आती। मैंने भी तर्जुमा ऐसे किया। 2001 की पाबंदियां थी तो सैफुल्लाह मंसूर शहीद रहमहुल्लाह, आप में से अक्सर भाई जानते हैं, कहने लगे अब्दुर्रऊफ ये बताओ ये बाद कहां लिखा है? फइन्ना मअल उसरि युसरा में बाद कहां लिखा है? मैंने कहा नहीं आप सब बाद नहीं लिखा, साथ लिखा है। कहते फिर साथ पढ़ा करो, बाद ना पढ़ा करो। तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है, बाद में नहीं है, साथ ही है। जहां तंगी होती है साथ ही आसानी खड़ी होती है। ये अल्लाह का कुरान है, ये किसी इंसान की बात नहीं है, किसी अखबार की खबर नहीं है, किसी टीवी का बयान नहीं है, किसी हुक्मरान की खुशखबरी नहीं है। ये अल्लाह अहकुमुल हाकिमीन की बातें। जब तंगियां आती हैं तो साथ ही आसानी है। बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महु। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तारुफ करवा रहे हैं अल्लाह ताला। किस तरह? हमने इस इब्राहीम को बार बार कई बातों में आजमाया, हम उसको बार बार इम्तिहान में डालते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतरते या भाग जाते? फअतम्महुन, वो उसको पूरा करते। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हमने उन्हें दुनिया के में इमाम बना दिया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, काबिले सद एहतराम साथियों, मेरी मोहतरम बहनों, माओ, अगर दुनिया की इमामत चाहते हैं, अगर दुनिया में इस्लाम का गलबा चाहते हैं, तो इससे पहले आजमाइश का दौर है, ये कुरान मजीद है। आपके साथ जो हो रहा है ये अलग नहीं हो रहा, ये सब कुरान में लिखा हुआ है, ये सब हदीसों में मौजूद है। आपके साथ कोई अलग नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कोई पहली दफा हो रहा है। और यहां तो अपने मुल्क की जेलें हैं, मुझे पता इनमें क्या बेचारी है। पाकिस्तान में कोई इस जमात को कुछ नहीं खराब करना चाहता। इस जमात का यहां कोई मसला नहीं है। गिरफ्तारी गुजरांवाला में होती है और शादियाने कहां बजते? वाशिंगटन में।
कहती हुकूमत पाकिस्तान है, गिरफ्तार हमने किया। और मुबारकबादें कौन दे रहे हैं? हम 10 साल से तलाश कर रहे थे। हो पागलो, तुम कहां तलाश कर रहे थे? इसी गुजरात में हाफिज साहब, ये पिछला जुमा लाहौर पढ़ाया, कौन से छुपे हुए लोग थे? 2 साल में हमारा दबाव था और हम इनसे नहीं घबराते। ये तो दुनिया की छोटी छोटी कैद जेल है। मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाने के लिए तैयार हो गए थे, मगर आग में जाते हुए भी क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज हम भी यही कहेंगे, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है। हमें किसी से कोई गम नहीं है। लोग डराते हैं और डर जाओ, बस करो। हम कहते हैं अभी तो सफर का आगाज हुआ है, अब बस करना। अभी तो समझ आई है कि काम ठीक है, और जिस काम से कुफर को तकलीफ हो, जिस काम को काफिर रोकना चाहे, और जिस काम के ऊपर वो कहे कि हम 10 साल से कह रहे थे इसको रोक दो, और जिस काम को ट्रंप रोकना चाहे, वो काम रुकना चाहिए कि चलना चाहिए? वही तो चलना चाहिए। वही तो सही काम है जिसको रोकने की काफिर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये काम कुरान में मौजूद है। और जितनी मुखालफत हो रही, अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में आपकी कोई मुखालफत नहीं, ना इस मुल्क में हमने किसी की मुखालफत की, ना हमने फिरके फैलाए, ना हमने कोई दहशतगर्दी की। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का पत्ता भी हमारे हाथ से नहीं टूटा। किसी को तू कह के भी नहीं बुलाया इस मुल्क में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है, इस मुल्क में लोगों को मोहब्बतें दी हैं, इज्जत दी है, और इस मुल्क की अवाम ने भी हमें हमेशा मोहब्बत दी है, अब भी मोहब्बतें। और किसी ने कोई मुश्किल मसला नहीं। हम पे गुस्सा उनको है जिनको होना चाहिए। सच्ची बात है, आप सबकी गिरफ्तारी बहुत बड़ा मसला था, मगर जब गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर अंदर वॉशिंगटन से पैगाम आ गया ना कि ठीक हो गया, तो हमने भी क्या, या अल्लाह तेरा शुक्र है ठीक ही हो गया। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो बड़े कमजोर हैं, हमारे अंदर तो गलतियां ज्यादा और खूबियां कम है। हम गुनाह ज्यादा करते हैं, नेकियां थोड़ी करते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कोई नमाज नहीं, टूटी हुई बेकार नमाज है। मगर अल्लाह तूने इतनी तौफीक दी कि तेरे बड़े बड़े दुश्मन आज हमारे बारे में बात करें। अल्लाह हम तो इस काबिल नहीं, हमारा तो काम भी इतना ज्यादा नहीं है। मगर भाइयों, इन बातों से खुश तो जो होना है। कितने लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे कंधों पे बोझ ज्यादा पड़ गया, अब काम का ज्यादा मौका बन गया, अब एहसास ज्यादा पैदा हो गया, अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है, अब इस्लाह का वक्त है। और वावे अल्लाह नहीं करेंगे। और कसम से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के कुछ टुकड़े बांटने लगे अंसार के लोगों को, तो कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे मुहाजिर भाइयों को भी दे दें। आपने फरमाया फिलहाल तुम ले लो, कल तुम्हारे ऊपर दूसरों को तरजीह दी जाएगी, तुम्हें पीछे कर दिया जाएगा, औरों को आगे किया जाएगा, तुम पे दूसरों को तरजीह दी जाएगी। मेरे अंसार के भाइयों, तुम उस वक्त सब्र करना, यहां तक कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात कहां पे हो जाए? हौज़े कौसर पे। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकातें अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे होने वाली इंशाअल्लाह। इन तकलीफों का कुछ पता नहीं लगना। मेरी बात सुन ले, ये भाई कहते हैं बहुत मुश्किल वक्त है। क़यामत के 50,000 साल के मुकाबले में क्या मुश्किल है। जहन्नम की आग अल्लाह ताला हमसे खत्म कर दे, क़यामत की घबराहट अल्लाह ताला हम पे खत्म कर दे, और आखिरत की मुश्किलात अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे, जन्नत का कोई कोना हमारे मुकद्दर में कर दे। दुनिया में क्या,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और दुनिया की मिसाल तो आखिरत के मुकाबले में ऐसे है जैसे तुम में से कोई पानी में उंगली डुबोए, समुंदर में उंगली डुबोए, जो पानी उसकी उंगली के साथ लगता है ये दुनिया है और समंदर आखिरत है। दुनिया की तकलीफ भी कतरा और इसका फायदा भी पानी का कतरा, और आखिरत की तकलीफ भी समंदर और आखिरत की राहत भी समंदर। परेशान ना हो, हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, हम इस दुनिया में रहने नहीं आए, हम इस दुनिया को बनाने नहीं आए, हम आखिरत के लोग हैं। हम इस दुनिया में जीने नहीं आए, हम इस दुनिया में मरने की तैयारी के लिए आए हैं। और कौन है जो इस दुनिया के घर बनाने के लिए आया? नहीं मुसलमानों, कोई दुनिया के घर नहीं बनाने आया, अल्लाह ने यहां जन्नत के महल बनाने के लिए भेजा। और इन हालात में क्या बन रहा है? और अगर कोई मुश्किल है तो ये जितने बैठे ये बताएं मुश्किल आई क्या है? मुझे एक भाई मिला, कहने लगा तुम लोग कहते हो बहुत मुश्किलें हैं, कहीं सच्ची मुच्ची ना आ जाए। अल्लाह का शुक्र करो कि जो तुमसे पहले लोगों के साथ हुआ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कैसे सहाबी थे और जिनको आग पे जलाया जाता, कोयलों के बिस्तर इनके लिए बिछाए जाते, कहते मेरी मालिकन मैं गुलाम था, मुझे दहकते अंगारों पे लिटाती, मेरे खून से मेरी चर्बी से वो आग बुझती थी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, ये बात मैंने आसानी से कह दी, आपने आसानी से सुन ली। कभी अकेले बैठ के सोचिएगा, एक आदमी कोयलों के बिस्तर पे है और उसकी चर्बी पिघलती है, उसके खून के कतरे गिरते हैं, उसका गोश्त पिघल पिघल पे उस आग पे गिरे और उसके साथ वो बुझे। अभी तो बाजारों में ना जाते हैं ना कोई वक्त मिलता है, पहले कभी कभी ये टिक्के विक्के कि होटल पे जाते थे ना, तो मुझे ये हदीस याद आती थी। वो पंखा चलता था या बिजली का पंखा उसने अंगीठी पे लगाया होता था और सीखे ऊपर रखता था और कतरे गिरने शुरू होते थे और उसके कोयले बुझते थे। वो फिर पंखा लगाता था, उसको जलाता था, वो फिर कतरा गिरता था, उसका कोयला बुझता था। जब मैं ये इस अंगीठी को देखता था मुझे खुबाब रज़ी अल्लाह तआला की हदीस याद आती थी। वो एक दिन का मरहला था कि रोज। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गुजरात में बड़ी गर्मी होती होगी, लाहौर में बड़ी गर्मी होती होगी, और मैंने नवाबशाह की गर्मी देखी है और सिंध की गर्मियों में, सखर में, सिद्दी में रहा हूं, जैकाबाद की गर्मी देखी है और तुर्बत की गर्मियां, सारी दुनिया की गर्मियां देखी हैं, मगर मैंने कभी सिद्दी में दिसंबर के महीने में एयर कंडीशनर चलते नहीं देखा, लोगों को रजाइयों में चलते बैठे देखे। मैंने सखर की सर्दी को रजाइयों में देखा है, मगर मक्का के अंदर दिसंबर के महीने में भी क्या चलते हैं? एयर कंडीशनर। मक्का में कभी ऐसा महीना नहीं आता कि उस सर्दी को सर्दी कहे, उनकी गर्मी क्या होगी। और मक्के की गर्मी पे किसी को लिटाया जाए और सीने पे पत्थर रखा जाए और गले में रस्सी डाली जाए और मक्के की गलियों में उसको घुमाया जाए और वो बिलाल हो रज़ी अल्लाह तआला। मेरे भाइयों बहनों, कलमा मेरा और बिलाल का एक हो, कलमा मेरा और खुबाब का एक हो, कलमा मेरा और सुहेब का एक हो, कलमा मेरा और आले यासिर का एक हो। मैं कहूं ये क्यों हो रहा है और वो कहे कि मुझे जन्नत नजर आ रही है। रज़ी अल्लाह मजमाईन। मुझे नहीं समझ आती थी पत्थर क्यों रखते हैं सीने पे और गलियों में फिरा रहे हैं। झाड़ियां आती होंगी, पत्थर आते होंगे, नोकदार कोई चीजें आती होगी, किसी दरख्त की जड़ आती होगी और नीचे कमर होती होगी। पत्थर इसलिए सीने पे रखते थे कि ये सांस ना ले सके। होता है ना, बंदा एक कंधा उठाता है, थोड़ा सांस आ जाता है, फिर दूसरा कंधा उठाता है, एक को सांस मिलता है, दोनों कंधे जमीन पे लगे रहें, इसलिए पत्थर रखते थे, ये सस्ता ना सके। और क्या हुआ मेरे भाइयों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम इस दुनिया में इस दुनिया के मजे लेने नहीं आए, हम इस दुनिया की सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए आए हैं। हमारा रब हमारे इंतजार में है।
ہمارا رب ہمارے انتظار میں ہے اور ہم اپنے رب کی ملاقات کے اشتیاق میں ہیں. ہم نے اس دنیا میں کیا رہنا ہے؟ بس آنکھ بند ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، سارے غم ختم ہو جائیں گے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 7واں مسلمان تھا، میں 7واں مسلمان تھا. کھانا نہیں تھا، درختوں کے پتے کھاتے تھے. وہ کوئی ہے جو اس مجلس میں کہے اس نے آج درختوں کے پتے کھائے؟ درختوں کی جڑیں چباتے تھے. جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے انسانوں کی طرح فارغ نہیں ہوتے تھے، بکری کی طرح مینگنیاں کرتے تھے، بکری کی طرح مینگنیاں کرتے تھے. اسلام لانے والوں نے، میں کہتا ہوں نبیوں کی باتیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات میں چلے جائیں تو کئی جمعے گزرے، نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھے تو کئی جمعے گزرے، موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرانی پڑ جائیں، اور کوئی ہے جو یہاں تک کہے کہ ہاں 10 سال بکریاں چراؤں گا، اجرت بھی کوئی نہیں، شادی ہونی. اور ہجرتوں کے سفر کبھی کدھر اور فرعون کے ظلم، 70,000 90,000 بچوں کے قتل. اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے کوئی جانتا ہے؟ تو واللہ ہم نے صرف یہ باتیں پڑھی ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال، مکہ کے 13 سال. میں اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو، نوجوان ساتھیوں کو، پڑھے لکھے بھائیوں بہنوں کو کہتا ہوں طائف کا سفر بار بار پڑھا کریں، پھر کہا کریں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. طائف کا سفر پڑھیں. سر کا خون کہاں پہنچا ہوا تھا؟ پاؤں تک. سر کا خون پاؤں تک تھا، خون رس رہا تھا. اتنا خون بہا کہ جوتے چپک گئے. پاؤں سے جوتے اتارتے تھے نہیں، خون جمع ہو گیا جوتوں کے اندر، جوتا اتارتے تھے اترتا نہیں تھا. کوئی یہاں بیٹھا ہو جو 1 میل دوڑے اور لوگ اس کو پتھر مارے، زید کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پیچھے آتا کہ پتھر آپ کو نہ لگے مجھے لگے. پھر بھی پتھر آپ کو لگتے تھے. جا کے باغ میں پناہ لیں، فرشتے آ جائیں، پہاڑوں کا فرشتہ آ جائے، جبرائیل امی آ جائیں کہ ہم ان کو تباہ کر دیں گے. پیس سے کہا نہیں، میں ان کی تباہی کے لیے تھوڑی آیا ہوں. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. اے اللہ تو ناراض تو نہیں، تو مجھ سے خفا نہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے اس سے سپرد کرتا ہے جس کو میرا تعارف ہی نہیں. کیوں نہیں کہتے آپ لوگوں کو؟ اور جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کو ہمارا تعارف، وہ ہمارے عقیدے کو جانتے نہیں ہیں، وہ ہمارے جہاد کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ ہماری دعوت کو جانتے نہیں ہیں، وہ ہماری خیر خواہی کو جانتے نہیں ہیں. اے اللہ تو جس کے سپرد میرا معاملہ کرتا ہے وہ مجھے جانتا ہی نہیں. اے اللہ میں اپنی کمزوری کا سوال کس سے کرتا ہوں؟ میں لوگوں کے سامنے نہیں روؤں گا، میں لوگوں کے سامنے نہیں روؤں گا. اے اللہ میرا رونا تیرے سامنے، اور لوگوں کے سامنے روئیں گے لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اور لوگوں کے سامنے اپنے مسئلے رکھیں گے لوگ مسئلے حل نہیں کر سکتے. مسئلے حل کرنے والا صرف ایک رب ہے، اور میرے اور آپ کے آنسوؤں کی قیمت دینے والا صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے. دعاؤں کو سننے والا، اس مشکل کو آسانی میں بدلنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کی طرف جائیں گے. اے اللہ، اللہم نشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وحواننا علی الناس. اے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اور نہ کوئی اسباب ہیں. اور لوگوں نے جس طرح یہ ڈرانا شروع کیا، یہ سارا اے اللہ میں سب تیرے سامنے سوال کرتا ہوں، میرا کسی سے شکوہ نہیں. اے اللہ میں اپنے گلے تجھ سے کرتا ہوں. کوئی اٹھے رات کو دعا کرے تو انشاءاللہ یہ وقت گزرنے والا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
क़यामत को जो आजमाए गए, जिनको अल्लाह की तरफ से की वजह से सताया गया, अल्लाह की नाम की वजह से जिनके ऊपर आजमाइशें आई, जब अल्लाह ताला इनको अजर देगा, तो जिनको दुनिया में आजमाइश नहीं आई तो वो क्या पुकारेंगे? ऐ अल्लाह, काश दुनिया में हमारे चमड़े को, हमारे गोश्त को कैंचियों से लोग कुतर देते। ऐ अल्लाह, तू आजमाइशों पे इतना देता है, ऐ अल्लाह तू आजमाइशों पे इतना देता है। कहेंगे कि काश हमारे चमड़े लोग कैंची से, लोहे की कैंचियों से कुतर देते। ये क़यामत के दिन हसरत करेंगे, और जिनको आजमाया गया है उनको देख देख के जो मौज करने वाले, ये भी ये नहीं कहेंगे अल्लाह जिंदगी मौज गुजरती, ये भी कहेंगे जिंदगी कहां गुजरती। आजमाइश मांगनी नहीं है, हम आजमाइश के तलबगार नहीं हैं, हम कमजोर हैं, हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। मगर आजमाइश आएगी फिर रोएंगे या इस्तकामत? होए की गलती कर ली सी, किते फांसी ना जाइए, किते ओ फंस क्या जाए, फांसी भी हो जाए, तो यही तौहीद है, यही दावत है, यही जिहाद है, यही रास्ता है, यही कुरान है, यही हदीस है। इसके सिवा कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं। और कोई बंदा अपनी जिंदगी से पहले उसको मौत, जितने दिन अल्लाह ने लिखे वो उसने गुजारने, परेशान मत हो कि कोई अपनी जिंदगी से पहले मर जाएगा। जिस दिन अल्लाह ने लिखना उसी दिन जाएगा। हाँ, रसूल करीम सही मुस्लिम में हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स के बारे में अल्लाह ताला फैसला कर देंगे, इसको जन्नत में भेजना है। अल्लाह ताला उसको बुलाएंगे, इधर आओ, वो अल्लाह के सामने पेश होगा। अल्लाह ताला हम सबको उस पेशी के दिन बगैर हिसाब के भेजते हैं, क्योंकि जिसको अल्लाह ने क्यों कह दिया ना, पूछ लिया, वो बर्बाद हो गया। और कोई साथ नहीं होना, कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई साथ नहीं होगा, अकेले का हिसाब होगा, अकेला रब और उसका बंदा होगा, दूसरा बंदा साथ नहीं होगा। ये बड़े लोग कहते हैं मेरे साथ वो होगा, मुझे वो छुपा लेगा, मुझे वो बचा लेगा, मैं उसकी पनाह में। अकेला रब होगा और अकेला उसका बंदा होगा, कोई दूसरा बंदा नहीं होगा। अकेले बंदे ने हिसाब देना है। दाएं भी अमल होंगे, बाएं भी अमल होंगे। दाएं देखेगा तो आग होगी, बाएं देखेगा तो, फरमाया उस जहन्नुम की आग से बच जा, चाहे आधी खजूरी दे दे। तो उस मौके पे ये फरमाया, अल्लाह ताला कहेंगे इसको जन्नत देनी, उसको बुलाएंगे, बता दुनिया कैसे गुजारी। ये हदीस याद रखनी सबने इंशाअल्लाह। कहेगा अल्लाह ताला, भूख, प्यास, तकलीफें, आजमाइशें, तंगियां, कोई अच्छा वक्त नहीं था दुनिया में, मुश्किल। अल्लाह कहेंगे अच्छा, फरिश्ते से कहेंगे इसको जन्नत में ना सिर्फ ऐसे टच कर देना, जन्नत इसको ओवरव्यू दे दो, एरियल व्यू दे दो, जन्नत में कोई नेमत ना देना, इसको दिखा के ले आओ। जिस तरह ट्रेलर नहीं होता है, एक असल घर होते हैं, असल कॉलोनियां, एक उसका इश्तिहार चल रहा होता है, सिर्फ इसको इश्तिहार दिखाओ, जन्नत नहीं अभी। वो जन्नत में उसको ऐसे लेके जाएंगे, फौरन वापस लाएंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे दुनिया कैसी गुजारी, तो क्या जवाब देगा? है अल्लाह, मैंने कभी कोई तंगी देखी? जन्नत की एक झलक दुनिया की सारी मुश्किलात को खत्म कर देगी। दुनिया की सारी परेशानियां जन्नत की एक झलक से चली जाएंगी। दूसरे बंदे के बारे में फैसला अल्लाह ताला का होगा कि जहन्नुम में उसका मामला है। अल्लाह ताला उसे पूछेंगे बता, कहेगा अल्लाह ताला दुनिया में खाना पीना, घर, सरदारियां, हुकूमतें, नेमतें, जो चीज तूने पैदा की सब मेरे पास है। आज लोग समझते हैं दुनिया की चीजें नेमतें हैं, होगी ये भी नेमत वो है जिसको आखिरत मिले। काली सही बुखारी की हदीस है रज़ी अल्लाह तआला, इस दुनिया के चाहने वाले भी हैं। ने फरमाया ये दुनिया जा रही है और आखिरत आ रही है। इस दुनिया के चाहने वाले भी हैं, उस आखिरत के तलबगार भी हैं। तू अल्लाह से क्या मांगना? आखिरत मांगना। इस दुनिया के नतीजे ना निकालना कि इसकी जिंदगी दुनिया की अच्छी तो ये अच्छा है, ये नहीं है।
آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی گزرا، صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا شیخ آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اگر بات کرے تو لوگ اس کی بات سنیں، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کہیں رشتے کا پیغام دے تو اس کو رشتہ ملے۔ آدمی دنیا کا بڑا یہی چیز ہے نا، پیسہ بھی ہے، بات بھی سنتے ہیں، اس کی سفارش مانی جائے، اس کو یہی دنیا میں باتیں۔ آپ چپ کر گئے۔ ایک اور بندہ گزرا، کہ یہ کون ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غریب آدمی، کچھ ہمارے بھی یہاں نا ساری عزت کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے نہیں ہے، نوٹوں کے لیے۔ کوئی آدمی انسانوں کی عزت نہیں کر رہا اس معاشرے میں، سب پیسوں کی عزت کرتے ہیں۔ لوگ اپنی عزت کرواتے ہیں کہ اپنی گاڑی کی؟ اپنا نام نہیں بتاتے، پہلے اپنی گاڑی کا نام بتاتے ہیں، اور پہلے اپنا نام بتاتے ہیں کہ پہلے اپنا موبائل جا کے رکھتے ہیں، اس کو پتہ لگے کہ اس کے پاس آئی فون ایکس ہے، اس کے پاس گلیکسی کا لیٹسٹ ماڈل ہے۔ اور لوگ کپڑوں کی ٹاکیوں کے ساتھ اپنی عزت بناتے ہیں کہ میں برانڈ کی اینک اور برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں میں نے 88,000 کا جوتا پہنا۔ جن لوگوں کی عزت نہیں ہوتی وہ جوتوں میں عزت تلاش کرتے ہیں، وہ لوہے کی گاڑی میں عزت نہیں بتاتے ہیں، وہ موبائل کی سکرین میں عزت بتاتے ہیں۔ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ جن کا کردار ہوتا ہے انہیں چیزیں نہیں بتانی پڑتی۔ میں فلاں کالونی میں رہتا ہوں، میرا فلانا گیٹ ہے، آپ پوچھیں گے میں ایم ایل اے کا بھائی، اور تو ایم ایل اے کا بھائی خود کیا ہے؟ میرے ابا جی فلاں، چلو ہوں گے، آپ کیا ہیں؟ وہ جن کا پلے کچھ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں بتائیں گے، کبھی گاڑی کی کبھی گھر کی، اور جن کے پاس دین ہوتا ہے ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں، لوگ دروازوں سے ان کو دھکے دیتے ہیں، بچے غریب ہے نا، بے حیثیت ہیں، بے وقت ہیں، دروازوں سے دھکیل دیتے ہیں لوگ، اور کچھ کو بیٹھکوں میں بٹھاتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں لے کے جاتے ہیں، ان کے سامنے کھانے پر رکھتے ہیں، ان کو اپنے بیڈ روم تک لے کے جاتے ہیں۔ انسان دونوں ہی ہوتے ہیں، ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور ایک کے پاس ہوتا، اور سکا بھائی آ جائے غریب ہو اس کو نہیں پوچھتے، اور 7ویں جگہ کا رشتہ دار ہو پیسہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ایک میں کٹھے جمے سے، اور چھوڑ دو اللہ کے واسطے، چھوڑ دو اللہ کے واسطے کا دروازوں سے دھکیلے جاتے ہیں۔ مگر اگر یہ اللہ کے نام پہ قسم کھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں 2 چادروں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، کل کائنات ان کی 2 چادریں، ایک کمر پہ باندھ لیتے ہیں، ایک اوپر لے لیتے ہیں، 2 چادریں ان کے پاس ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مگر یہ کہہ دیں یہ ایسے ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں جن کو ہم چیزیں بنانے لگے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عام آدمی ہے، یہ بات کرے اس کی سنے کوئی نہ، یہ سفارش کرے قبول کوئی نہ۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے دولت مند کی طرح تمہارا وہ جو جس کو تم کہتے ہو کہ ہر کوئی اس کی بات سنے رشتہ، ساری دنیا اس سے بھر دی جائے، ساری دنیا کے لوگ اس کے مرتبے پہ پہنچ جائیں، اس کے مقام کو ساری دنیا حاصل کر لے، یہ ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا اس کے برابر ہو جائے، اس سارے مل کے اس اکیلے کا اللہ کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کچھ مقام اللہ کے پاس ہیں، کچھ مقام اللہ کے پاس ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ قومیں نہیں پوچھے گا، اللہ قبیلے نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پیسے نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری گاڑیاں ڈگریاں کچھ نہیں پوچھے گا۔ اللہ کہے گا لاؤ تقویٰ کہاں ہے، لاؤ تقویٰ کہاں ہے؟ کہا اس کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا کیسا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ بڑی خوشیاں، بڑی موجیں۔ اللہ کہے گا اچھا۔ فرشتے سے کہیں گے جاؤ اس کو جہنم میں ڈپ کر کے، اس کو نا کیا کہتے ہیں، ایک ٹچ کرا کے لے کے آؤ، صرف غوطہ دینا اس کو جہنم میں، ڈالنا نہیں، صرف ایسے ڈپ کرنا لے آنا، ایک غوطہ دینا۔
जहन्नुम का एक लम्हा गुजारने के बाद दुनिया की मौजें करने वाला अल्लाह ताला उसको सामने खड़ा करेंगे, पूछेंगे बता दुनिया कैसी गुजारी, तो क्या जवाब देगा? है अल्लाह मैंने कोई अच्छा वक्त नहीं देखा। एक लम्हे की जहन्नुम दुनिया की खुशियां भुला देगी और एक लम्हे की जन्नत दुनिया के गमों को। और मत फिक्र करें दुनिया की परेशानियों की, दुनिया की गमों की, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बाकी रह गई हमारे जुर्म क्या हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। वो जो जुर्म यूसुफ अलैहिस्सलाम का था वो जुर्म आज आपका है। जिस जुर्म में वो जेल में गए थे, लोग कहते हैं आप सही साहब जेल में चले गए, क्या हुआ? वही हुआ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जुर्म करने वाले बाहर थे और जुर्मों से बचने वाले वो जेल में भेजे गए। जरूरी नहीं है कि मुजरिम जेल में जाएं, वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम न जाते। और मांग के जेल ली थी, मांग के जेल ली थी, मगर मुसलमान लोग कभी परेशान ना हो, इसी जेल से फिर तख्त पे पहुंचे थे, इसी जेल से निकले थे और फिर अजीज मिस्र पर बने थे, मिस्र के हुक्मरान बने थे। और जिन्होंने कुएं में फेंका था वो कहां खड़े थे? वो भिखारी बन के खड़े थे। गल्ला बांटने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और गल्ले की भीख मांगने वाले कौन थे? कुएं फेंकने वाले थे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन तो घूमते रहते हैं, मगर उस दिन भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ालू इन्नका लअन्ता यूसुफ, तो यूसुफ है? क़ाल अना यूसुफ, मैं यूसुफ, व हाज़ा अख़ी, ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। कहा ये अल्लाह का हम पे एहसान हो गया, जिसने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, सब्र किया, अल्लाह ताला उनके अजर को जाया नहीं करता। फिर क्या कहा? अल्लाह ताला मेरे भी गुनाह माफ कर दे, तुम्हारे भी गुनाह माफ कर दे, गलतियां उनसे हुई थी मगर उनकी तौबा यूसुफ अलैहिस्सलाम कर रहे थे। का शैतान हमारे दरमियान आ गया था, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके भी खैर खा हैं। बाकी हमने काम क्या किए मुझे पता है। ट्रंप क्यों खुश है? वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह खत्म कर देना चाहते थे। वो तकफीर के फितने लाके मुसलमानों में फिरके बना के इनको आपस में लड़ा के वो दाइश का पाकिस्तान में नेटवर्क बनाना चाहते थे। वो खुद कुछ हमलों को पाकिस्तान में परवान चढ़ाना चाहते थे। वो पूरे मुल्क में ड्रोन हमले करना चाहते थे। वो मुसलमानों को मुसलमानों से बाहम दस्तों गिरेबान करना चाहते थे। वो किसने मोहब्बतों की फिजा पैदा की? अफगानिस्तान के भाइयों से कहा तुम हमारे भाई हो। अफगानिस्तान पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते थे, लड़ना नहीं है। अमेरिका की साथ से नाकाम हो। वो हम बलोचिस्तान में थे, आवारान में जब मैं गया हूं ना, तो आवारान के घरों में यूएसएड के बोर्ड लगे हुए थे। पाकिस्तान की फौज नहीं थी, पाकिस्तान के इदारे नहीं थे। और कोई पाकिस्तान 5 साल बाद डीसी शहर में दाखिल हुआ था, 5 साल के बाद डीसी अपने शहर में दाखिल हुआ था। 4 साल के बाद अस्पताल के ताले तोड़े थे, कुछ नहीं था, मगर घरों में किसका नाम लिखा हुआ था? यूएसएड। अमरीकी मदद हर घर में आ रही थी। और बलोचिस्तान में पैसे अमरीका के आए थे। ये सवात को, बाजोर को, मलकंड को, ये दीर सवात के इलाकों को, इसमें जो काम हो रहा था वो कौन कर रहा था? मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। और इन सबको कहां चोट लगी है जाके? तकलीफ किसको पहुंची है? वो अफगानिस्तान के इलाके हों, वो पाकिस्तान में इनकी साजिशें हों, और हम स्कर्दू में खुबानी सुखा रहे लोग। मैंने कहा पैसे कहां से हैं? कहते अमरीकी यूएसएड है, उनकी तरफ से पैसे मिलते। हमने कहा तुमने उनसे पैसे नहीं लेने, हम पाकिस्तान से तुमसे चंदा खैरात मंगा के देंगे, तुमने मुसलमानों से पैसे लेने, उनसे नहीं लेने। और वो पैसे नहीं दे रहे थे, वो ईमान खरीद रहे थे। और कश्मीर में तहरीकें दब गई थी, उस चिंगारी को शोला कैसे बनाया गया। और जो कश्मीर कहता था आजाद तो होंगे,
खुद मुख्तार होंगे, पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे। उसके हर चौक चौराहे गली बाजार में पाकिस्तान के नारे कैसे लगे, हर जगह पे पाकिस्तान के परचम कैसे लहराए गए, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आवाज कहां से गई? तो आप अपने आप को कहीं और खड़ा देखते हैं, दुनिया आपको किसी और जगह देखती है। तो इंशाअल्लाह जो काम किए हैं अल्लाह ताला कबूल कर ले, और हम अल्लाह से तौफीक मांगते हैं, अल्लाह ताला रास्ता दिए रखना। और जो अल्लाह से तौफीक मांगता है, जो अल्लाह से मुखलिस होते हैं, जो अल्लाह से इस्लाह तलब करते हैं, जो गुनाहों को छोड़कर गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने काम से मुखलिस होते हैं, डरते घबराते नहीं हैं, अल्लाह ताला कभी उनको महरूम नहीं करता और कभी काफिरों के सामने उनको मजबूर नहीं करता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।